33% of women's reservation, or you can say women reservation bill. This bill has been presented in 2010 in Rajya Sabha in the presence of Dr. Manmohan Singh, the Prime Minister of India at that time, and this bill has been passed already in Rajya Sabha. And later on in 2023, this bill has been presented in Lok Sabha and also passed in Lok Sabha in 2023. This women reservation, which is 33%, has been already passed in both the houses. Then why once again this bill is in discussion in recent past? What makes this bill once again presented in the Lok Sabha and rejected, and reason why it rejected? What is women's reservation? How it impacts a women's participation in Indian Parliament, or you can say Indian politics, when it has been already passed by both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha? Then why once again it presented and it rejected? We'll understand that. Number one, women needs participation in politics. Definitely the presence of women in Indian politics, or you can say Indian Parliament, is very lesser comparatively. Most of the time we see the women prime ministers in different including our neighbors. शेख हसीना थी, बेनजीर भुट्टो थी, तो बहुत सारे जो women participants हैं, women being a prime minister, women being a foreign minister, women being a finance minister. Yes, even we have sometimes when Smriti Irani was there in Indian Parliament, she was a textile minister, state minister. The Sitaraman is a finance minister. Yes, she is doing really great. Oh, we'll understand, but still, you like it or not, still we have very less participation of women in Indian politics. वो ग्राउंड लेवल पे ले लो, वो स्टेट लेवल पे ले लो, और वो हायर लेवल पे ले लो. अब पहले तो हम ये समझते हैं कि what is women reservation or how it impacts Indian politics. Right now, in Lok Sabha, we have 74 women. In Rajya Sabha, we have 42 women, which makes 116. This makes out of 543, it is 14%. This is out of 245, this makes 17%. इसका टोटल है 160 लोकसभा और राज्यसभा में. अगर इसी को अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितने 14% है, यहाँ पे 17% है. अब इसी को अगर 33% बना दिया जाए तो इसका मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे इन 74 इट सेज 7 out of 1. अगर 7 सीट है तो 7 में से 1 वुमेन को दिया जाएगा. अगर राज्यसभा में 6 सीट है, 6 out of 1. अगर 6 सीट है तो वुमेन को 1 सीट दी जाएगी. अभी फिलहाल के लिए 7 में से 1 मिल रहा है और 6 में से 1 मिल रहा है, राज्यसभा एंड लोकसभा. एंड नंबर 2, which is very important, अगर 10 में से 3 सीट या 4 सीट दी जाए, और यू कैन से 100 में से 33% मीन्स 100 में से 33 सीट दी जाए. इसका मतलब हो जाएगा लोकसभा में 33% of women's presence makes 181, and in Rajya Sabha 33% makes 81. This will be the bill. If bill passes and it applies, तो women का presence in both the houses इतना हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे दोनों हाउस को इंक्लूड नहीं किया है, इसमें एक ही हाउस को इंक्लूड किया है, which is only लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. State legislative assembly has the same pattern. It has to be same pattern in state legislative assembly. The interesting fact is, why no Rajya Sabha? Because Rajya Sabha is not included in 33% reservation for women is because Rajya Sabha members are not elected directly. और इसका रीजन एक और भी आ जाता है डिलिमिटेशन बिल में कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कौन करता है? आपके एमएलए जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल,
ये सारे मिलकर राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ये तो हमें पता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन इसी तरह से होता है। अब क्योंकि लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और वहां पे 33% दिया जाना चाहिए। अब वो 33% जब बिल ऑलरेडी पास हो चुकी है तो अभी तक उसको दिया क्यों नहीं गया? 2023 में पास हो गई, 2024 में तो दिया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ वो। और क्योंकि उसके लिए एक और चीज वेट कर रही थी, राज्यसभा में तो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, और लोकसभा में इंक्लूड किया जाएगा जब डिलिमिटेशन बिल पास होगी। अब डिलिमिटेशन क्या है? डिलिमिटेशन, मान लो तमिलनाडु की अभी जो पॉपुलेशन है वो 7 करोड़ है, 7 या 7.5 करोड़ है पॉपुलेशन। 20-50 लाख कम ज्यादा होगी फ्रॉम 2011, जो 2011 का सेंसस है ना, वही उसी को अभी भी मान के चल रहे हैं। अब वही उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ और मोर और लेस 20 करोड़। तमिलनाडु की पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डबल हो गई। मान लो अभी 20 करोड़ है, 25 करोड़ हो गई उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन। तो अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन बिल इसमें क्या होगा? 5 लाख पॉपुलेशन के लिए एक एमपी है। मान लो अगर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो एक पर्टिकुलर एमपी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंस्टेड ऑफ 5 लाख 8 लाख अगर हो गए तो 5 लाख के लिए एक एमपी बनाया जाएगा और बाकी के जो 3 लाख होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाएगा और वहां पे किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 लाख और पॉपुलेशन को लिया जाएगा, एक बाउंड्री बनाएंगे और वहां पे एक और एमपी को इलेक्ट करवाया जाएगा। तो ये हो गई आपकी डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपके एमपीस चुने जाएंगे। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपके एमपीस के नंबर होंगे कि इतनी पॉपुलेशन को इतने एमपीस होंगे। जैसे कि 5 करोड़ 5 लाख पॉपुलेशन को एक एमपी होगा और जो बच जाएंगे लोग वो दूसरा एमपी इलेक्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस को पूरा डिलिमिटेशन बिल कहते हैं। अब यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन कैसे इन्फ्यूज किया जाएगा? क्योंकि वुमेन को 33% दिया गया है और वो 33% जो कि अभी के लोकसभा में कितना है मेंबर? 543 एंड द ऑल अपोजिशन पार्टी सेइंग जो भी आपको रिजर्वेशन देना है वो इसी में से दें। जो 33% रिजर्वेशन है वो इसी में से दें। एंड द रूलिंग पार्टी सेज कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डिलिमिटेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे पहले, जिससे सीटें बढ़ जाएंगी। जहां जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां पे घट जाएंगी, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे सीटें बढ़ जाएंगी। तो डिलिमिटेशन के बाद वुमेन रिजर्वेशन देने के लिए हमारे पास बहुत सारी सीटें और बन जाएंगी, तब हम जाके डिलिमिटेशन के अकॉर्डिंग हम वुमेन रिजर्वेशन दे देंगे 33%। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि उन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा जहां पे अब मान लो 550 के करीब अभी लोकसभा में सीट है एमपीस की। अब मान लो 800 लोकसभा सीट्स हो गए आफ्टर सेंसस। अभी जो सेंसस चल रहा है, अभी जो आने वाला है 2026 या 2027 में जो सेंसस होगा, उसमें मान लो कि 500 से ज्यादा 800 एमपीस की सीट बन गई अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डेवलपमेंट जो ग्रोथ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 800 सीट बन गई। अब उसके बाद उन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा जिनकी पॉपुलेशन बढ़ी नहीं? अब मान लो तमिलनाडु की अभी रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ द हाउसेस 50+ है और वही उत्तर प्रदेश की जो कि 20 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है फिलहाल, उसकी 100+ है दोनों हाउसेस में रिप्रेजेंटेशन। अगर ऐसे हालात में अब मान लो यूपी के और पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, 25 करोड़ हो गई, तो उनके तो एमपीस बढ़ गए ज्यादा। अब तमिलनाडु की पॉपुलेशन कांस्टेंट रह गई, नहीं बढ़ी, कम बढ़ी, नहीं बढ़ी, तो उनके एमपीस कम हो गए, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो गया। ये हो गया एक आर्गुमेंट। और दूसरा आर्गुमेंट ये है कि भाई तुम्हारी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी तो इसमें हमारा क्या दोष? हमारे लोग तो बड़े हुए हैं, हमारी पब्लिक फैली हुई है, हमारे पास फर्टिलिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, वी आर ह्यूज पॉपुलेटेड पीपल रीजन,
तो हमारे को तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना। तो ये हो गया दूसरा आर्गुमेंट। अब यहाँ पे 33% ऑफ वुमेन रिजर्वेशन देना भी लगभग इजी है, क्योंकि जो ये मेंबर्स ऑलरेडी सालों से एमपी बनते आ रहे हैं। कई दफा तो देखा होगा आपने कि एक ही एमपी बन रहा है पर्टिकुलर रीजन से, पर्टिकुलर जिला से 6 बार एमपी बन गया, 30 साल से वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है या कुछ भी नहीं। तो ऐसे हालात होते हैं। तो यहाँ पे 33% रिजर्वेशन देना, मान लो कौन अपनी सीट छोड़ के किसी लेडी को देगा। और लेडीज भी जो पॉलिटिक्स में आती है वो भी सुभान अल्लाह। इसमें एक किस्सा याद आता है मुझे। व्हेन इन दिल्ली केजरीवाल हैज बीन एलिमिनेटेड, और उसके बाद केजरीवाल ने एक और लेडी को लाया था सीएम की सीट पे। एंड मेरा पर्सनल अजम्पशन था केजरीवाल पढ़ा लिखा बंदा था। जो नेक्स्ट सीएम आई थी फ्रॉम आम आदमी पार्टी, शी वाज आल्सो गुड। आई हैव सीन सम ऑफ हर वर्क एंड सम वीडियोस ऑफ हर, शी वाज डूइंग वेरी वेल। उसके बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग दिल्ली की सीएम की सीट पे कोई जानी मानी हस्ती आएगी, थोड़ा मतलब दिमागी होगा, क्योंकि केजरीवाल के अपोजिशन में है, जानी मानी हस्ती होगी, कुछ तो इम्पोर्टेंट करेंगे। लेकिन जो आई रेखा जी, इट इज आउटस्टैंडिंग वुमेन। शी इज गुड, वेरी गुड वुमेन। शी इज वेरी गुड इन डूइंग नथिंग। शी इज वंडरफुल इन डूइंग नथिंग। यू कैन से यूजलेस सीएम इन द कैपिटल सिटी ऑफ दिस बिग डेमोक्रेसी। बट एनीवे, उससे बेहतर तो कोई स्कूल की टीचर ही हो सकती थी। कोई स्कूल की टीचर लेके आया था जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है, बेहतर कर लेती है पॉलिटिक्स, कुछ तो अच्छा कर लेती है। एंड वन मोर थिंग हियर, माय प्रॉब्लम इज रेखा गुप्ता के कंपैरिजन में अगर स्मृति ईरानी होती, अगर कंगना रनावत होती दिल्ली के सीएम, आई थिंक थिंग्स हैव बीन बिट बेटर। कुछ अच्छा हो सकता था, कम से कम बोल तो लेती कुछ तो ढंग का। इफ इट इज नॉट इन राज्यसभा, लोकसभा में तो 33% दिया जाएगा, वो भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करने के बाद। दैट ऑल्सो आफ्टर सेंसस। आफ्टर सेंसस यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट डिलिमिटेशन एंड लेटर ऑन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द 33% रिजर्वेशन बिल। द नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम says after next census and delimitation exercise, we are going to implement 33% reservation for women in next coming fresh election. After fresh selection, census, then we are going to implement the women reservation bill in this thing. We'll see what is the history of women reservation, and also we'll see how it impacts women reservation in SC ST. See, right now in SC, in Lok Sabha, you have 84 seat. 84 seat out of 543. 543 में 84 सीट हैं अभी SC के लिए, जो कि बन जाता है 15% ऑफ 543 का। और ST के सीट हैं 47, जो कि 8% है, और इसका टोटल 131 एंड परसेंटेज इज 24। अब इसी में से 84 और 70, 47 में से 84 और 47 में से इसी परसेंटेज में से 33% दिया जाएगा वुमेन को। अब मान लो SC कितना, 84 सीट है, 84 सीट है SC का, तो 84 में से 33% वुमेन को दिया जाएगा। तो इन दिस देयर इज नो चेंजेस, इन दिस SC ST सीट्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन हाँ SC ST सीट में ये वाले चेंजेस होंगे कि 33% इसमें वुमेन को भी ऐड किया जाएगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या 33% मैक्सिमम है? नो, 33% इज नॉट द मैक्सिमम, इट इज ऑन द फ्लोर, इट इज नॉट द सीलिंग। सीलिंग का मतलब है कि मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं, नहीं। फ्लोर पे का मतलब है कि इतना मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम ऑन द सीलिंग, मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग, वॉलंटरली यू कैन गिव as much as possible. And the next question is, are this applicable on state assembly? Yes, it is applicable on state legislative assembly, but not in state legislative council, जो कि MLC होता है। इसमें
MLA होता है, इसमें MLC होता है. In some states like Karnataka and some other states, we have two houses, that is Legislative Assembly and Legislative Council. Now, the 33% is not on the ceiling, it is on the floor. इसका मतलब है कि 33% मिनिमम प्रेजेंट होनी चाहिए ऑन द फ्लोर. ये मैक्सिमम नहीं है. सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम नहीं है. मैक्सिमम वॉलंटरली यू कैन इंक्रीज एज यू विश. अगर 33% से भी ज्यादा वुमेन इलेक्ट होके आ जाती हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल जाएगा. अगर 50% भी हो जाती हैं इट्स ओके. जो कि अभी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि एज वी हैव सीन इन लोकसभा वी हैव ओनली 74, राज्यसभा वी हैव 42. इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा में 50% तक होना इट इज बहुत मुश्किल है. हाईली इट इज डिफिकल्ट. जो कि 33% के बाद हो सकता है कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द पार्लियामेंट एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स में इंक्रीज अप टू 33%. ये सारी चीजें, हमें इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? विल अंडरस्टैंड दैट कि वुमेन की रिजर्वेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी. When we had Constituent Assembly, during in Constitution Assembly, we had at least 15 Constituent Assembly member. 15 Constituent Assembly member थी women. और उसमें जो महारानी अमृत कौर थी और उस तरह के बहुत सारी जो चीज़ें हैं, विजयलक्ष्मी पंडित, there are so 15 women who are in Constituent Assembly. But that makes in 299 जो Constituent Assembly थी, Constituent Assembly उसमें 15 वुमेन थी जो कि 5% बनाती थी 299 का. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर थे वो 299 थे, जो कि उसमें से 15 वुमेन थी जो कि 5% ही थी इन एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड दे डिड वेरी फैबुलस जॉब. और उन्होंने जो सोशल सर्विसेज हैं और जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने सारे आर्टिकल्स हैं which gives so many rights for women, backwards, SC/ST में इन सब का contribution बहुत ज़्यादा माना जाता है. They did a really remarkable job. So even after independence, after so many decades, but still we were not able to give. Why we were not able to give women's performance or women reservation in the Indian Parliament? The reason behind was 1990s में इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आए थे. वीपी सिंह, चंद्रशेखर एंड देवेगौड़ा. देवेगौड़ा वॉज इन 92 देवेगौड़ा वॉज देयर. तो 1990 में वुमेन रिजर्वेशन बिल प्रेजेंट किया गया इन द पार्लियामेंट और वहाँ पे डिसीजन लिया गया कि 33% वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए इन इंडियन पार्लियामेंट. लेकिन वो वहाँ पे पास नहीं हुआ. वो it was a 73rd constitutional amendment says जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अकॉर्डिंग 73rd constitutional amendment में according to 368 in the constitutional amendment, the 368 says according to that 73rd constitutional amendment done in 1992, in this पंचायत राज है उसको इम्प्लीमेंट किया गया. अब पंचायत राज में क्या है? वही जो समिति, जो ब्लॉक है, जिला परिषद है, जो तालुक पंचायत है, विलेज पंचायत है, जिसमें मुखिया वगैरह बनते हैं. तो वो जो लोअर लेवल पे इंडिया में रिजर्वेशन दिया गया 33% फॉर वुमेन. दैट सेज द लोअर लेवल डेमोक्रेसी. इवन इन UPSC दिस पंचायत राज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे 33% रिजर्वेशन दिया गया इन 1990s ड्यूरिंग HD देवेगौड़ा लुंगी पहन के आता था पार्लियामेंट में. तो उनके ड्यूरेशन में ही वॉज देयर ओनली फॉर 1 year और 1.5 year. तो वहाँ पे दिया गया 33% जो लोअर लेवल पे था. और इसके बाद कुछ स्टेट्स ने, एज आई सेड, 33% इज ऑन द फ्लोर, यू कैन इंक्रीज. और कुछ स्टेट्स ने इसको इंक्रीज कर लिया अपने हिसाब से कि नहीं हम वुमेन का प्रेजेंट और वुमेन का पार्टिसिपेशन हम अपने स्टेट लेवल में, क्योंकि स्टेट
के अंडर में आते हैं वो सारे इलेक्शंस वगैरह, तो उसके हम उसको इंक्रीज करेंगे वॉलंटरली, विलिंगली, विथ विल एंड विश दे इंक्रीज that percentage from 33 to 50%, like state of Bihar, state of Madhya Pradesh, राजस्थान और महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ स्टेट्स ने इसको इंक्रीज कर दिया, जो कि मैंडेटरी कितना था 33% था, और उन्होंने इंक्रीज कर कितना किया 50%, जो कि सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि women makes half of your population. Women definitely makes half of your population. हो सकता है कि 1-2% कम ज्यादा हो गया हो, लेकिन half of population is presents your problems, क्योंकि women से ज्यादा problems किसके पास होते हैं? मेरे पास आ जाओ, मेरे पास अभी 2000 problems है, यूं गिनवा दूं. Women will have so many problems. She can solve so many problems, and she can do multiple tasks. Presence of women up to 50% in the parliament makes it makes sense. It is that decision is really larger than life. So here women did, and remaining many states which also have the 33% on the floor, but in so many states they have multiple reasons and arguments of not giving more than 33%, क्योंकि बहुत ज़्यादा dominated men होते हैं in men's politics. Entering women is really difficult. Everybody cannot be Indira Gandhi sitting in the cabinet having like only men in entire cabinet. It is very difficult. Everybody is really not Indira Gandhi. Everybody is not Razia Sultana. There are very few people, Queen Victoria, very few people जो कि लीडर हो और उनके साथ आदमी हो, लेकिन वो फिर भी लीडरशिप की सीट पे बैठे. एक नॉर्मल जो विलेज पंचायत की जो इलेक्शन होती है, वहां पे वुमेन की हालत क्या क्या होते हैं. अगर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया वुमेन को, दे विल बी हरास्ड, दे विल बी टॉर्चर्ड इन मल्टीपल वेज. इफ रिजर्वेशन इज नॉट गिवन टू अ SC or ST women, a tribal woman, then she cannot even think of coming into the politics on limelight. ऐसे हालात हैं, ऐसी रियलिटी है. That is why we need reservation. We need some rules, regulations for women. कुछ के सैक्रिफाइसेस ऐसे होते हैं, कुछ के अचीवमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि रेखा गुप्ता जो कि चीफ मिनिस्टर बन गई, हालांकि उनसे ज़्यादा सैक्रिफाइस, उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड है. वुमेन वर प्रेजेंट इन बीजेपी गवर्नमेंट, बट स्टिल हो सकता है कि उनके सैक्रिफाइसेस ज़्यादा हो, हमें नहीं पता जो शायद. बट अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि until unless you don't lift, you don't make a passage, a particular entire community, जो कि एक that makes your half of your population, we will be left behind. They need space, they need passage to pass through forward. It is very important. Reservation is very important, including SC ST. Yes, there are still SC STs who are really suffering. अभी भी ज़रूरत है SC ST की रिजर्वेशन की, क्योंकि आज भी SC ST are suffering. आज भी चलता है, आज भी उनकी इकोनॉमिक क्लास इतनी पैरेलल नहीं है कंपैरेटिवली. दूसरों के कंपैरिजन में, दूसरे कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में आज भी SC ST की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनकी जो सोशल लाइफ है, उनका जो दूसरी कम्युनिटी के साथ मिलना जुलना है, वो कम है. फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोसाइटी में, सोशल लाइफ में, हर जगह आज भी भेदभाव होता है. जो कहते हैं कि नहीं होता, ऐसा थोड़ी है कि उनको रिजर्वेशन मिलता है. जो कहते हैं कि नहीं होता, शायद वो नहीं करते. In larger, they suffer. They need reservation. There might be few people who are taking like the advantage of reservation. Let them take, yeah. Let them take. Because the entire community of SC, ST, tribal just suffered for centuries. Like still women is suffering from centuries. Women is still suffering. Women is working out. Women is working at home. Women is doing homework, doing this job, all household chores, but still she's suffering financially, emotionally, mentally. Society में हर जगह they need some reservation, they need some space, passage to move around. Yes, it is needed. Women also need it, and also the backward classes, economically weaker sections, yes, they need it. Until unless they don't have reservation, it is difficult to get the facilities and what the status is, privileges in life. And here, one more thing I like to tell is, I have seen in national television,
The Prime Minister of India was addressing the nation. We'll understand what is Prime Minister. पहले तो हम समझते हैं कि Prime Minister होता क्या है. Prime Minister आपके देश का चेहरा है. हमारे देश का चेहरा है Prime Minister. Face of our nation. Prime Minister की जो सीट है ना, जो उसकी जो जगह है, जो Prime Minister ऑफिस है, उसका अलग अपना स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, प्रिविलेज है, प्रेस्टीज है, वो अपना मुकाम है, उसका अपना रुतबा है. प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ी चीज है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर. अब सोचो, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स, rich people, extremely poor people. We have one of the biggest Supreme Court. We have one of the biggest financial capital. We have one of the biggest stock market. इंडिया बहुत बड़ा है. उस मुल्क का, उस देश का प्राइम मिनिस्टर एक बादशाह से कम नहीं होता. जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, वो किसी भी पार्टी से इलेक्ट होता है. नॉर्मली लोकसभा से, राज्यसभा से, किसी भी पार्टी से इलेक्ट होकर आता है. किसी भी पार्टी का एक फेवरेट मेंबर होता है, एक ट्रस्टवर्दी मेंबर होता है प्राइम मिनिस्टर. उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है एक पार्टी का. ट्रस्ट है, फेवरेट है, बहुत ज्यादा नोटेड है, फेम है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. जैसे कि मोदी जी को बनाया गया 2013-14 में. मोदी जी के बहुत फेमस थे. अब की बार मोदी सरकार. अच्छी बात है, फेमस पर्सन एंड वंडरफुल थॉट्स. कि मोदी जी ने कहा था एक बार, जो आपकी अदालत एक का शो है, उसमें आके कहा था कि मुसलमान को एक हाथ में कुरान होना चाहिए तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए. वंडरफुल थॉट. इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता. वंडरफुल थॉट. तो प्राइम मिनिस्टर जब किसी पार्टी से एक बंदा सेलेक्ट होके, इलेक्ट होके प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, देन गेम बिगिंस. वहां पे द पर्सन हु बिकम्स प्राइम मिनिस्टर नो लॉन्गर रिमेन्स पर्टिकुलर पार्टीज प्राइम मिनिस्टर. ही विल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंटायर भारत. पूरे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है. वो किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, किसी एक रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. उसकी जो कुछ भी चीजें होंगी वो उसकी पर्सनल हो जाएंगी. जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो तो आप पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हो. आप उसके भी होते हो, मेरे भी होते हो, सबके होते हो, सबका प्राइम मिनिस्टर है वो. प्राइम मिनिस्टर represents your country, your economy, your society, everything. Your GDP, everything. Prime Minister represents everything what you have. Your education, your health sector, everything. Your achievement, your success, everything. That should be the Prime Minister. ये नहीं कि आके किसी अपोजिशन वाले को गाली दे रहा है. ये नहीं कि आके किसी कम्युनिटी को गाली दे रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, कहीं और कुछ कह रहे हैं. You cannot talk. You cannot insult. Send your spokesperson. Send your party members. But the words what you choose should be, उसके words होने चाहिए health sector, education, success, targets. कि हमने ये अचीव कर लिया, हमने उसके दाम कम कर दिए, हमने वहाँ पे एक IIT खोल दी, वहाँ पे हमने एक MIT खोल दी, हमने ये बना लिया, हमारा इसरो ने ये लॉन्च किया, हमारा MIT ने ये रिसर्च किया. तो ये वर्ड्स होने चाहिए. और पाकिस्तान के बगल में एक टेरिटरी थी, हमने अपनी आर्मी को भेज के उसको अंदर कर लिया. बांग्लादेश को शेख हसीना को लाया, फिर बांग्लादेश अंदर कर लिया. ये होने चाहिए. एक प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स ऐसे होने चाहिए. श्रीलंका इंडियन ओशन में था, उसको कह दिया कि आज से तू हमारा बंदा है, तू हमारी सुनेगा. मालदीव्स को ढूंढा, नहीं मिला, तो वहां पे समंदर की एक लहर बढ़ा दी, मालदीव्स को गायब कर दिया. दैट शुड बी द प्राइम मिनिस्टर. नॉट ये कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को गाली दे रहे हो, आप एक पर्टिकुलर इंसान को गाली दे रहे हो, आप इसको गाली दे रहे हो, आप उसको गाली दे रहे हो. ऐसी बातें, इतनी निराश बातें कर रहे हो नेशनल टेलीविजन पे. क्या हम ये सुनने के लिए बैठे हैं? लगता है कि हम वी पे टैक्स टू यू इन एवरीथिंग व्हाट एवर वी बाय, और वहां पे बैठ के आप ड्रामे कर रहे हो पार्लियामेंट में. तो हिंदुस्तान की जनता को आप बेवकूफ समझते हो या हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ है? द पर्सन हु सिट्स इन द प्राइम मिनिस्टर सीट शुड मेंटेन द डेकोरम. आप किसी कोर्ट में चले जाओ, वहां पे आपको जो जज होता है ना, वो एक बात कहता है, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ दिस कोर्ट.